Hello everyone, welcome to this session. So today is the start of the VARC section for Maharashtra CET. Yes, a lot of you have been asking me कि मैम कैसे प्रिपेयर करना है महाराष्ट्र CET के लिए because you know आपने बाकी MBA entrance examinations दिए होंगे, maybe they've not gone according to how you had expected, but now Maharashtra CET is your go to ticket क्योंकि ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो बहुत सिंपल है in terms of its syllabus, in terms of its portions, but उसके साथ साथ the kind of colleges that are up for grabs are great. So this is one such exam which a lot of you look forward to, and ये एग्जाम सीजन के ऑलमोस्ट सबसे लास्ट में भी आता है. तो जिन्होंने पहले MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दिए हैं उनके लिए भी, और जिन्होंने नहीं दिए हैं उनके लिए भी लगभग इट्स अ लेवल प्लेइंग ग्राउंड, बिकॉज द काइंड ऑफ टॉपिक्स दैट यू गेट इन दिस आर वेरी सिंपल, दे आर वेरी बेसिक. बट व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू प्रिपेयर इज बिकॉज इतना हेवी कंपटीशन है. You know, when you talk about the examination and you talk about the pattern, basically the time that you have per question is almost less than a minute. So the competition is and the competition is also great because you're only like limited like seats up for grabs in like the best top colleges, and there are so many students vying for it. So इसीलिए we have to up our game when it comes to the Maharashtra CET examination, because it's a very doable examination, but competition high है, तो we have to make sure that we are ahead of that competition. और उसके लिए right preparation, right technique बहुत ज़रूरी है. Right. So in this particular lesson, I'm going to tell you what is going to be a VARC roadmap when it comes to the Maharashtra CET examination for MBA. ठीक है. तो if you do profiling, guys, of the previous year questions, see it's very important. ठीक है. चाहे आप कोई भी examination लो, it's very important that you go through the PYQs. And if you see these sort of examinations like CMAT हो गया, SNAP हो गया, NMAT हो गया, महाराष्ट्र CET हो गया, you will also find कि इनमें एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी ये है कि PYQs बहुत रिपीट होते हैं. ठीक है. तो you can say that's a huge plus point for you as students, because आपको एक अच्छी guidance मिल जाती है PYQ से. You also get to know how you have to prepare, what are the areas that you have to prepare, and what is the level of difficulty to be expected. और साथ ही साथ अगर same questions आ जाए तब तो बहुत ही अच्छा है, right? So if you do a profiling of the questions, you will understand कि ये सारे topics है when it comes to the VARC section. Okay, so you have reading comprehension. हाँ, इसमें passages आते हैं. But as I said, the number of passages keep on fluctuating. तो अगर हम PYQs के basis पे जाए तो हमको पता चल जाता है कि हाँ RC आता है, और RC काफ़ी important area भी है. But the number of passages keeps on fluctuating. Like कभी आपको 2 भी आ सकते हैं, कभी 1 भी आ सकता है, कभी 4 तक भी जा सकते हैं. So the number of passages keeps on fluctuating. Passages are short in nature. Questions are direct or simple inference based questions in nature. Level of RC passages is also easy to moderate होता है. ज़्यादा आपको इसमें क्या बोलते हैं heavy usage of vocabulary या inference ideas या CAT के RC passages के जैसे नहीं होता है. So they are very doable. Okay, and generally जब RC बोलते हैं ना तो students होते हैं चलो ये तो हम लोग छोड़ रहे हैं, हाँ ये हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग डर जाते हैं, उनको लगता है कैट के दिन वापस आ गए. बट गाइस कैट के आरसीज में और इन एग्जाम्स के आरसीज में बहुत बड़ा फर्क है. वहां पे आपको लगता है कि आरसीज आपकी वीकनेस हो जाती है अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है, पर यहाँ पे एक्चुअली आरसीज आके आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है क्योंकि बहुत ईजी और डुएबल होते हैं. सो व्हेन इट कम्स टू आरसीज मैं आपको सिखाऊंगी हाउ डू यू टैकल आरसी पैसेजेस. स्पेसिफिकली इस एग्जामिनेशन के आरसी पैसेजेस कैसे होते हैं, उनको टैकल करने की मेथडोलॉजी क्या होती है, एंड स्पेशली वी आर गोइंग टू परफेक्ट द टेक्निक ऑफ स्किम एंड स्कैन एंड द प्रोसेस ऑफ रिवर्स रीडिंग. तो ये दोनों हम मेथडोलॉजी में मैं आपको सिखाऊंगी. Now, grammar is so important for this examination, and I've started to see that a lot of you have been searching for videos which explain the important grammar rules. क्योंकि guys grammar ये आपको पहले examination में आपको सीख मिल गई होगी कि just going by your existing knowledge आप grammar crack नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे आप बोलते हो या जैसे हम day to day life में बोलते हैं maybe that's not grammatically correct.
ठीक है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, एक पर्टिकुलर रूल्स पर्टिकुलर रूल्स होते हैं जो हमको जानने चाहिए. So grammar rules are very important. So see, when you talk about the examination also, I would say that generally सब लोग स्टार्ट करते हैं प्रेपरेशन एट द बिगिनिंग ऑफ फेब. ठीक है, तो समझ लीजिए आपके पास 60 दिन रहते हैं तब. तो ऑलवेज डिवाइड दिस इनटू 20-20-20 का फॉर्मूला. ठीक है, 20-20-20 डेज का फॉर्मूला. ठीक है, 4-5 दिन इधर उधर जा चुके, वो बेसिक आई एम टेलिंग यू. ओवरऑल 20-20-20 डेज के फॉर्मूला में आपको डिवाइड करना है. फर्स्ट 20 डेज में योर फोकस शुड बी ऑन लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, the first 20 days your focus should be on learning the concepts and perfecting the concepts. The next 20 days should be about practice and revision of concepts. तो जो concepts छूट गए हैं, जो concepts आपको अच्छे से नहीं समझ में आए हैं, या जिन concepts में आपको लगता है कि आपको और preparation की जरूरत है, वो करो. साथ में practice. And the last 20 days should be all about practice but testing. So tests, चाहे वो mock tests हो, चाहे वो sectional tests हो, चाहे वो PYQs हो, very important. So this is a formula that I suggest, this is the right formula to crack this examination. 20-20-20 का formula. Concepts, practice and revision of concepts, practice and testing. So in the first 20 days, make sure that your grammar concepts are thorough, because grammar से बहुत questions आते हैं, चाहे वो nouns हो, pronouns हो, articles, verbs, adverbs, adjectives, prepositions, conjunctions, idioms, phrasal verbs, modifiers, subject verb agreement, conditional sentences, सारे areas से questions आते हैं. बट कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है विच आर नीड टू नो एंड विच आई विल टेल यू. ठीक है, तो वॉच आउट फॉर माई ग्रामर सीरीज गाइज फॉर दिस एग्जामिनेशन. आई एम गोइंग टू कम अप विद अ सीरीज ऑफ ग्रामर वीडियोस, जहां पे मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, रूल्स एकदम सिंपल तरीके पर एकदम होलिस्टिकली समझा दूंगी. उतना करके जाना बहुत है. ठीक है, सो ग्रामर पे हमारा फोकस होगा. सो इसमें अगेन आई विल मेक श्योर दैट यू ऑल गो थ्रू द रूल्स प्लस वी गो थ्रू द प्रैक्टिस सेशंस एज वेल. फिर आता है vocabulary based questions. ठीक है, सो अगेन vocabulary based questions occupies a major chunk. सो आप बोल सकते हैं अराउंड 20-25-30 तक भी जाता है कभी कभी, बट 25 questions are roughly from vocabulary, various areas of vocabulary and verbal. चाहे वो synonyms हो, antonyms हो. yes, there have been examinations जहाँ 15 questions आए हैं only from synonyms and antonyms. okay, so these are the PYQs. ठीक है, इतने questions आए हैं previous year में इन areas से 10 to 15 के range में synonyms and antonyms. तो our focus again should be on root words. So again watch out for my video on vocabulary concepts, root word concepts, synonyms, antonyms, analogies, idioms, fill in the blanks, finding out the vocab odd one out. ठीक है, series based questions vocabulary पे. तो आपको ऐसे कई स्पेलिंग के क्वेश्चंस हो गए, फॉरेन वर्ड्स के क्वेश्चंस हो गए. सो ऐसे छोटे मोटे कई सारे एरियाज हैं, होमोनिम्स के हो गए, होमोफोन्स के हो गए. तो आप अलग से हर एक करने जाओगे तो you may not know कि ये भी आ सकता है क्या, ये भी आ सकता है. सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेक यू इन अ सिस्टमैटिक मैनर थ्रू ऑल ऑफ वोकैबुलरी. सो कॉन्सेप्ट के वीडियोज आएंगे, एकेडमिक वीडियोज आएंगे, उनको जरूर देखना. एंड वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ वोकैब प्रैक्टिस इन अ मैराथन सेशंस एज वेल. सो जल्दी से ये सब अनाउंस होने वाले हैं. सो मेक श्योर कि आप लोग देखते रहो. सो येस, आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू वोकैब. हमारा फोकस होगा रूट वर्ड्स पे प्लस अंडरस्टैंडिंग ईच इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट. कि ठीक है, आप एनालॉजीज कैसे पढ़ोगे. सो व्हाट आर द 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालॉजीज. फिल इन द ब्लैंक्स के रूल्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स क्या होते हैं, 1 blank 2 blanks, क्लोज टेक्स्ट कैसे होता है, इंपॉर्टेंट फॉरेन वर्ड्स कौन से है, इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग होमोनिम्स होमोफोन्स कौन से हैं. तो वो सब आपको देखना है. ओके, देन ऑफ कोर्स पैरा जंबल्स आ भी सकते हैं, अगर आए तो 5 तक भी आए हैं कभी कभी, वरना नहीं भी आ सकते. सिंपल है, ऑप्शन बेस्ड है, प्रैक्टिस इज इनफ फॉर इट. एंड येस, ओ सो इम्पॉर्टेंट, क्रिटिकल रीजनिंग, whether it's assumption based questions, inference based question, conclusion, statement and assertion, cause and effect, courses of action, जो हमारे 8 important critical reasoning के areas है, you have to go through it. okay, right. So ये रहा पिछले साल के पैटर्न के मुताबिक. Now so what is going to be your roadmap? So essentially I can divide the syllabus into 4 modules. So there are 4 important modules. Grammar में we have to make sure that we go through all the rules with regards to the parts of speech. ठीक है, तो nouns, pronouns,
आर्टिकल्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, सारे इंपॉर्टेंट जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्लस जो अदर एरियाज होते हैं जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गया. सो जो छोटे छोटे एरियाज है पर इंपॉर्टेंट है, उनसे एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं. वी हैव टू गो थ्रू इट. सो आपको सारे रूल्स करना है. यू कैन वॉच माई वीडियोज. आपको एडिशनल हेल्प चाहिए इसमें, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू रेमंड मर्फी की बुक है इंग्लिश ग्रामर की इंटरमीडिएट वर्जन. यू कैन गो थ्रू दैट, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू. रेमंड मर्फी. ठीक है. सो वी हैव टू गो थ्रू द रूल्स. वोकैबुलरी में गाइस फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रेंथन करो. सो मेक श्योर दैट आप लोग रूट वर्ड्स रिवाइज करो, रूट्स, प्रिफिक्स एंड सफिक्स को रिवाइज करो, उससे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लो. फिर उसके बाद देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन टाइप्स है. जैसे फॉरेन वर्ड्स है तो गो थ्रू द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फॉरेन वर्ड्स. आप मेरी भी वीडियो देख सकते हैं. मैंने सीमैट के लिए फॉरेन वर्ड्स की वीडियो निकाली थी, इसी चैनल पे है. You can go through that. It's the same for Maharashtra CT as well. So important foreign words, spellings आप रूट वर्ड से करोगे तो आपको स्पेलिंग्स अच्छे से आ ही जाएगा. फिर एनालॉजीज के डिफरेंट टाइप्स क्या है, इंपॉर्टेंट एनालॉजीज को गो थ्रू करो, इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ इडियम्स को गो थ्रू करो, फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस करो. ठीक है. क्लोज टेक्स्ट प्रैक्टिस करो. सो वोकैबुलरी पर कॉन्सेप्ट में पहले आप रूट वर्ड्स अच्छे से कर लो ताकि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाओ. आरसी में आई वुड सजेस्ट कि आपका रोड मैप होना चाहिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. और प्रैक्टिस कहाँ से करें, ऑफकोर्स वो भी मैं आपको बताऊंगी. बट ऑल्सो स्टार्ट गोइंग थ्रू PYQs, ओके, स्पेशली फॉर आरसीज. एंड क्योंकि हमारे पास महाराष्ट्र सीट इतने स्लॉट्स में होता है, हमारे पास काफ़ी सारे PYQs अवेलेबल है. मेक श्योर यू गो थ्रू आरसी के PYQs. क्रिटिकल रीजनिंग में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट आप कॉन्सेप्ट समझो. इसमें लोग गलत क्यों चले जाते हैं, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है. दे डोंट नो व्हाट इज एन अजम्पशन, हाउ टू आंसर एन अजम्पशन क्वेश्चन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इन्फ्रेंस, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कंक्लूजन. अगर कोर्सेज ऑफ एक्शन क्वेश्चन आए तो उसके पैरामीटर्स क्या है. So first go through the concepts of critical reasoning and then start working on it. So even I am going to take you through these 4 modules in our sessions. तो हमारे जो सेशंस होंगे वो 2 प्लेटफॉर्म हम डिवाइड कर सकते हैं. एक तो हमारा यूट्यूब चैनल है टेक्स्ट बुक MBA का, वहाँ पे आई विल टेक यू थ्रू ग्रामर, वोकैबुलरी, RC, CR के कॉन्सेप्ट and a lot of practice. We'll go through PYQs also in the marathon sessions. But guys, if you're really serious about this examination and if you really want to give it your all, if it is a do or die situation for you, and at the same time if you feel that your performance in the previous examinations was not that great and you really feel that now is the need for thorough coaching, start से finish आपको करना है, तो डेफिनेटली गाइस मेक श्योर कि आप ये महाराष्ट्र सीटी का जो हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है उसमें आप एनरोल करो, क्योंकि इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको सारे सेक्शंस के विद क्लास नोट्स. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉक टेस्ट होंगे और इनके एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड 400+ प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो यू डोंट इवन हैव टू सर्च. जनरली आपका टाइम किस में चला जाता है इन एग्जाम्स को प्रिपेयर करने में, ये वीडियो कहाँ से लूँ, ये वीडियो कहाँ से लूँ, इसके क्वेश्चन कहाँ से लूँ, ये PYQ कहाँ से मिलेगा, ये ई बुक कहाँ से मिलेगा, वो सब आप झंझट मत लो ना. यू जस्ट फोकस ऑन स्टडिंग, यू जस्ट फोकस ऑन प्रिपेयरिंग एंड let us do all that mehnat. So you get the entire suite of questions. All you have to do is you have to enroll. ठीक है. तो ये कोर्स भी लॉन्च हो रहा है, सो आप वॉच आउट करो, एनरोल करो. बट येस, सो एज आई सेड आपका रोड मैप का एम होना चाहिए 20-20-20. सो पहले 20 डेज में आप फोकस करो कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड कर लो. नेक्स्ट 20 डेज में आप सारे अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर लो. एंड लास्ट 20 में यू मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन PYQs एंड मॉक्स. एंड डाउट सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन एग्जामिनेशंस में, वो भी कोर्स में होता है. एग्जाम स्ट्रैटेजी, क्योंकि टाइम इतना कम है, राइट. अगर आप वर्बली देखो तो 50 क्वेश्चंस है वर्बल से ही, पर टाइम इतना कम है. तो हाउ एग्जैक्टली शुड यू प्लान योर स्ट्रैटेजी, क्योंकि सेक्शनल टाइम लिमिट्स और सेक्शनल ऑर्डर, ये सब in these examinations those sort of restrictions are not there, right? So how do you navigate between the sections, how do you solve the questions in such a way कि आप अपना strength पे खेलो, maximum questions आप attempt भी कर पाओ
टाइम भी आपका इतना नहीं लगे, एक्यूरेसी भी बरकरार रहे. सो दैट्स व्हाई गाइस, प्लीज मेक श्योर दैट इसके लिए जो हमारे स्ट्रैटेजी सेशंस होंगे, यू वॉच आउट फॉर दैट. एंड आप खुद भी अपनी एक एग्जाम स्ट्रैटेजी बनाओ, मॉक्स के बेसिस पे देखो कि वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, विच आर योर स्ट्रेंथ्स, विच आर योर वीक एरियाज, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज ऑन योर स्ट्रेंथ्स. ठीक है, बिकॉज ये एग्जामिनेशन ईजी है, इट्स अ गेम ऑफ बस थोड़ा सा रिवीजन हो गया, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया, थोड़ा सा टेस्टिंग हो गया और स्ट्रैटेजी होगी. इतना आप कर लोगे, 2 महीने सफिशिएंट है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए. सो आई होप आपको वीआरसी का रोड मैप समझ में आ गया होगा. सो यस गाइस, हम आपके मेंटर्स हैं एंड वी विल ऑल्सो मीट यू इन आवर यूट्यूब सेशन. सो चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे. कैट के भी बैचेस हमारे लॉन्च थे गाइस, द प्लस एंड द प्रो वर्जन्स. जल्दी से एनरोल करो, right? And I will see you all soon. So make sure to like and share the video. Watch out the space for more. Comment section use करो guys. आप भी हमको अपना बता सकते हो कि मैम, आप लोग बताते हो and we try and do that. आप बता सकते हो कि मैम ये मेरा वीक एरिया है, मेरे को इसमें और प्रैक्टिस चाहिए, आप इस पे हमको कराओ, इस एरिया पे वीडियोस लाओ, इस एरिया पे हमको और थोड़ा सा समझाओ. एंड आई विल डेफिनेटली इंटीग्रेट दैट इन माई सेशंस. आप बोलोगे मैम, लाइक अ लॉट ऑफ यू नो ड्यूरिंग सीमैट आपने बोला था मैम फॉरेन वर्ड्स करवाओ, and I came out with a video on foreign words, and then in the examination there were 2 questions directly from that particular list जो मैंने डिस्कस की थी. So that's why it's important कि आप लोग भी you get to know that okay, these are the areas that I'm lacking in and I need more help in, and we are always there to help you out, right? So guys, stay tuned for more of our sessions. Please make sure to like and share, and I will see you all soon. Thank you everyone. Take care.